السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تہجد کی دعا، تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریخ میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ پاک اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توقع اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف غم مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عارضی ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک ملے گا، اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ پاک نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ پاک اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ پاک کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ نماز تہجد اللہ پاک کے قرب حاصل کرنے اور اللہ پاک سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کی ندا تو ہر کوئی سنتا ہے، مگر تہجد کی نماز کی ندا خاص لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساکھ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھا۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ پاک کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ پاک ہے اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور پھر تہجد کی توفیق تو انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی تو تم نہیں اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرض سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی طلب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ کیا ہی خوش نصیب ہے
वो शख्स जिसको तहज्जुद के लिए चुन लिया जाता है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह पाक से इसका एहसास है। अल्लाह पाक हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब फरमाए। तहज्जुद में आंख से बहने वाला हर आंसू रब से दुआओं पर कुन कहने की सिफारिश करता है। रात के पहर जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो, तहज्जुद की दुआएं तो मोजज़ों का अक्स होती हैं। फर्श पर हाथ उठाओ तो अर्श पर अल्लाह पाक को पाओगे। रात की तारीक तरीन पहर में जब कोई अपने रब के हुजूर हाजिर होता है तो वो रब उस बंदे के दिल में आने वाली हर दुआ को कबूल करता है। तुम्हारी हर नामुमकिन ख्वाहिश तहज्जुद मुमकिन बना सकती है। हर तकलीफ से तहज्जुद तुम्हें शिफा दिला सकती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक तहज्जुद तुम्हें क्या से क्या दिलवा सकती है। तहज्जुद मोजिज़ात का दूसरा नाम है और तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि जिंदगी दिनों में बदल जाती है और कभी कभार तो लम्हों में। रात की तारीख का एक ऐसा लम्हा जब एक महबूब अपने महबूब से सजदारेज हुए सरगोशियों में मुलाकात करता है। यह वो लम्हा है जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता, न आंसुओं पर इख्तियार रहता है, न दिल पर मोहब्बत अपनी जुबान पर होती है। अनमोल मोतियों का एक कारवा जब चश्म महबूब से रवा होता है तो अर्श से आती है एक आवाज कि ऐ मेरे महबूब, बंदे मांग तू क्या मांगता है, बोल तू क्या चाहता है। अल्फाज लब से निकलते ही अर्श से आती है एक सदा, कुन फकीरों का महबूब वक्त कि जब शहंशाह के सामने फकीर अपनी दुखों की पोटली रखता है और बरकतों और सातों के खजाने लेकर उठता है। यह तो वक्त है जब मौला देता नहीं बल्कि लुटाता है। बस खुशनसीब ही झोलियां भर भर के ले जाते हैं। मनचाही मुरादें जल्द ना भी मिले तब भी एक सुकून वो इत्मीनान तो मिल ही जाता है और वक्त आने पर मनचाही चीजें मनचाही मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। तहज्जुद तो मोहब्बत का आखिरी मरहला है जब इंसान खुद को गवाकर अल्लाह पाक को ढूंढने निकलता है। यह वो मरहला होता है जहाँ मोहब्बतों की तलब नहीं रहती, बस मोहब्बत बनाने वाले की जुस्तजू लग जाती है। बात यह है कि मोहब्बत तो सबको मिल जाती है मगर तड़प किसी किसी को नसीब होती है और जिसको तड़प नसीब हो जाती है उसका नसीब अल्लाह पाक बन जाता है। बस फिर मामला कुन की हुदो गिरो जार जार बहते हुए आंसुओं को वो कभी भी जाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। तुम्हारी तन्हाइयां अल्लाह पाक के साथ ही तो कटती हैं। तहज्जुद हम जैसों के लिए उसका खास तोहफा है। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता। तहज्जुद की नमाज के लिए किसी उम्र की पाबंदी नहीं, जिसके काम रुके हों, मुश्किलात में डूबे हों, सुकून की तलाश में हों, औलाद की परेशानी हो, ये वो वक्त है जब सबकी सुनी जाती है। बस नींद की कुर्बानी देनी है और उस रब को राजी करने लग जाना है। वो बंदे के बहुत करीब है और वो करीब होकर वो हाजत भी सुनता है। बस अमल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सब कुछ अता हो जाता है। अल्लाह पाक को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वो इंतजार कर रहा होता है। तुम्हारा कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से जरा पहले सातवें आसमान पर नूर की मानिंद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज पर लब्बैक कहती हैं उनके लिए वो अल्लाह पाक से मेरे प्यारे अल्लाह पाक बन जाता है। दोस्त मददगार सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक। फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद वो बाहिर नमाज है जो अल्लाह पाक से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो, वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पर मौजूद होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि इंतजाम करो, शुक्र के सिले का तैयार रखो, कुन फया कुन का तोहफा। फिर फरिश्ते पूछते या अल्लाह पाक आज ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है। तहज्जुद तो मोहब्बत का खास तोहफा होती है, इतना खास कि अल्लाह पाक अपने बंदे से उस पर्दे में मुलाकात करता है जहाँ कोई तीसरी जात मौजूद नहीं होती। तहज्जुद की नमाज मोजिज़ों का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं,
न तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है, तहज्जुद का रास्ता। अंधेरी रात की करवट पर अपना बिस्तर छोड़ने वाले अपना एक अंदाज रखते हैं, रब को हमराज रखते हैं। तहज्जुद एक ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भी भर नहीं सकते, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ आसमान पर अल्लाह पाक जानता है कि उसका बंदा इंतजार कर रहा है, और यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह पाक आपका इंतजार देख रहा है। यकीन जानिए, यह दर्द का ढेर, अनगिनत आरज़ू, यह तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के एक हिस्से में मिलेगा। बात तहज्जुद की है, मोहब्बत से सुनिए। एक दर्द भरी रात अल्लाह पाक के रूबरू बैठकर गुजर जाए तो जिंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूं अपने करीब कर लेता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में सिमट आता है। बाकात, हादसात, हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना या चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मसलियत पोसीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुलाया जाता है ताकि तुम उस अफजल पहर में उठकर अल्लाह पाक को मना सको जिसमें मांगी गई दुआएं कभी भी रद्द नहीं हो सकती। यह तड़प इसलिए पैदा की गई है ताकि अल्लाह पाक तुम्हें अपने बेहद करीब कर सके। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो तुम्हें बिला वजह ही तड़प और मोहब्बत जगाए हुए है? नहीं, यह तड़प अल्लाह पाक ने पैदा की है। हर चीज नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे वो गम हो या खुशी। हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लाह पाक की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो उसकी जानिब बुलाया जाता है, कभी गिराकर और कभी संभाल कर। तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते बल्कि तुमको तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। कहानी को अल्लाह पाक तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए ताकि वो उसकी मांगी हुई मुरादों पर आमीन कह सके। वक्त और हालात हमें उन रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वो रास्ते हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। वक्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह पाक आसमान पर तारीक के रंग हमेशा नहीं रखता और उस आसमान को दिन के रंग बिरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आया है तो समझ लीजिए कि अब सिले का वक्त है। जिनका मिलना, जिनका मुकम्मल होना आपकी नजर में नामुमकिन है, जो मोहब्बतों का बादशाह है, वो कैसे आपकी मोहब्बत को नामुकम्मल रहने देगा? वो सुन लेगा और इतम में सब अदा कर देगा, करके इस मायूस दिल को संसार कर देगा। अपने आप में ही बहुत ताकत रखता है और वक्त तहज्जुद मांगी जाने वाली दुआओं की शिद्दत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नसीब भी नहीं। अल्लाह पाक से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक नहीं है, बल्कि सबसे पहला ताल्लुक जो अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान कायम हुआ वो मोहब्बत का था और मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को एहमान है कि वो मोहब्बत करता है मुझसे और अल्लाह पाक को एहमान है कि मेरा बंदा यकीन रखेगा मुझ पर। हम तो शायद एहमान उसका सलामत नहीं रख सके, मगर हैरत है उसकी मोहब्बत में फिर भी कोई कमी नहीं आई। वो कई नाफरमानियों के बाद भी हमें सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारी तकलीफ को समझता है। और जानते हो यकीन क्या है कि जब वो इंतजार का कहे तो इंतजार किया जाए, जब वो किसी चीज को दूर कर दे तो उससे दूर रहा जाए, जब वो हथेली पर रखते उसको दिल में बसा लिया जाए और अपने तमाम फैसलों पर उसके फैसलों को तरजीह दी जाए, उससे मोहब्बत की जाए। जो चीज उसको नाराज करती है उससे फिर मुड़कर कभी देखा ना जाए। कायनात की तमाम तकालीफ एक तरफ और अल्लाह पाक से दूर हो जाने का दुख एक तरफ, तो क्या उससे जुदा होकर रात को नींद आ सकती है? क्या उससे नाराज होकर सुकून मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो वो कभी इंसान का सुकून अपने जिक्र में न छुपाता, अगर ऐसा होता तो वो कभी सजदा न बनाता। तहज्जुद पढ़ने वालों के हिस्से ही अलग होते हैं, मोजज़े भी इंतजार करते हैं
उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह पाक ऐसे मोज़िज़े अता करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान के फरिश्तों ने। तहज्जुद की नमाज तक अगर पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बहुत करीब कर लिया है। रात के आखिरी पहर में उठकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और जो तलब तुम्हें अल्लाह पाक की बारगाह तक ले आई है उसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। याद रखो, जमीन और आसमानों की सल्तनत अल्लाह पाक ही की है और जमीन पर एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिल में ऐसी चीज की तलब रख दी जो तुम्हें दुनिया वाले नहीं दे सकते और अब तुम रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अदब से उसकी बारगाह में खड़े रहो और अपने गुनाहों की तौबा करो। बेशक तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तुम उजालों के खालिक को तहज्जुद की तारीखियों में मनाओ, फिर देखना वो तुम्हें मोज़िज़ों की सुबह अता करके राजी कर देगा। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह पाक तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है। दुआओं के जरिए तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब बंदा अपने रब से हम कलाम होता है और तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन से लेकर जाता है। यह जो मायूसी है न आजकल कहानी मुकम्मल होगी या हो सकता है तुम्हारा यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो। वक्त तहज्जुद जितना तुम अल्लाह पाक से बात करके खुश होते हो वो उससे ज्यादा तुम्हें सुनकर खुश होता है। अल्लाह पाक हर दुआ का जवाब देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आप से मिलवा कर जवाब देता है तो कभी उसे आप से दूर करके, कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है, कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसले समझाता है और कभी हाथ थमाकर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना रूह का रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह पाक को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में वो तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है, फिर तब वो चाहता है तुम उससे बातें करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ आओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कर आओ ताकि बस तुम और अल्लाह पाक रह जाओ। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो फिर उसी के जिक्र में है और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और जिसके साथ वो है उसके साथ तो कायनात की रौनक चलती है। तहज्जुद वो वक्त है जब बंदा अपने अल्लाह पाक से बात करने को तड़पता है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह पाक के बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। तहज्जुद में अल्लाह पाक से बात हो जाए तो सुबह हसीन हो जाती है। तहज्जुद में जिसने अल्लाह पाक को पा लिया उसने गोया दुनिया जहां का सुकून पा लिया। तहज्जुद वक्त है अल्लाह पाक से दोस्ती लगाने का। तहज्जुद वक्त है अल्लाह पाक से बातें करने का। तहज्जुद का सजदा हो और अल्लाह पाक ना मिले ऐसा मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद एक ऐसा अमल है जिसमें बंदा अल्लाह पाक से अपनी हर बात मनवा ही लेता है। तहज्जुद मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह पाक आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाकर इरशाद फरमाता है, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता कर दूं, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसुओं को अल्लाह पाक कभी भी नहीं जाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। बात तो सारी तड़प की है, वरना वक्त तो सारे ही कबूलियत के होते हैं। तुम उसकी मसलियत को नहीं जानते मगर वो रब तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। हो सकता है तुम्हारी इस आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना हो, दुआएं मोड़ लाएंगी मुकद्दर की खुशियां। तुम एक बार अल्लाह पाक से अच्छा गुमान करके तो देखो, यह तहज्जुद पहर तुम्हारा खाली हाथ नहीं जाएगा। यह वो सजदे हैं जहां तुम अपनी मुराद पालोगे और जब दिल में खुदा समा जाए तो आंखें गम में भी मुस्कुराती हैं। जिन हाथों को तुमने दुआ में उठा रखा है उन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए तुम अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाते हो। जो खुद को अल्लाह पाक के हवाले कर देते हैं अल्लाह पाक उनकी
किस्मत लिख देता है, उसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। जो मैं मांगती रही वो बेहतर था, जो अल्लाह पाक देगा वो बेहतरीन होगा। सुनो सुनो, मायूस मत होना। अगर यह वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजों का होगा। अगर देने वाले ने देने का वादा कर रखा है तो दुनिया लाख कोशिश करके भी तुम्हें वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकती। यह गम बड़े अनमोल है, यह तुम्हें रब के करीब ले जाएंगे, तुम्हें आजमाइश पर सब्र सिखाएंगे, तुम्हें सब्र का सिला दिलवाएंगे। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अजर के लिए चुन लिया गया है। अल्लाह पाक के फैसलों पर राजी होने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह पाक इतना नवाजेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कभी कुछ खोया भी था। आपकी दुआ हर उस चीज को आप तक ले आएगी जो आपके नसीब का हिस्सा भी नहीं होती। यह जो देर लग रही है वो अल्लाह पाक की खैर भी तो हो सकती है। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह पाक की रजा के लिए किया। जब अल्लाह पाक तुमसे कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो क्या तुम्हें यह कबूलियत की दलील नहीं लगती? अल्लाह पाक देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना, बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाज देगा और आपके सब्र का फल जरूर अता करेगा। अल्लाह पाक से अपना रिश्ता इतना मजबूत कर लो कि तुम्हें किसी के सहारे की तलब ना रहे। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। एक उम्मीद है कि दुआ सुन ली जाएगी, एक आस है कि अब कुन कह दिया जाएगा। हर रिश्ता कभी ना कभी मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। सिर्फ अल्लाह पाक की याद है जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। तहज्जुद की दुआएं तो मौजज़ों का अक्स होती हैं। फर्श पर हाथ उठाओ तो अर्श पर अल्लाह पाक को पाले, मायूस नहीं होते। अल्लाह पाक की रहमत से वो रात को दिन में बदलने वाला रब तुम्हारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल लेगा। इंशाअल्लाह तुम समंदर की गहराई से भी पुकारोगे, अल्लाह पाक वहां भी तुम्हारी इल्तिजा सुन लेगा। जो तुम चाह कर भी नहीं पा सकते वो तुम्हारी दुआएं तुम तक ले आई। जब हालात बस से बदतर होते चले जाते हैं तब मौजज़े होते हैं और दुआओं के जवाब देकर दिल मुतमईन कर दिए जाते हैं। सब्र कर लो इस नियत से कि अल्लाह पाक तुम्हारी नियत देख रहा है, वो तुमको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखो, वो रहमान है, तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह पाक मानता है आपके दिल में छुपे उस खौफ को जो आपको परेशान किए हुए है। अल्लाह पाक देख रहा है आपकी जिंदगी में मुसलसल चलने वाली मुश्किलात को जिनसे आप लड़ते हुए थक रहे हो। अल्लाह पाक वाकिफ है आपकी उस तकलीफ से जो आपको इन दिनों बेचैन किए हुए है, मगर याद रखें आप अकेले नहीं हैं। इस खौफ, मुश्किलात और तकलीफ की जंग में अल्लाह पाक हर जगह आपके साथ है। वो सब सुन और देख रहा है। बेशक अल्लाह पाक की मदद करीब है। जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फिर भले वो रास्ते में ही खो क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुंचकर ही तुम्हारा मुकद्दर होगा। पहले दुआ, फिर सब्र, मजीद दुआ, मजीद सब्र, मुसलसल दुआ, मुसलसल सब्र। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है और वो हर पल साथ है। यकीन कीजिए, जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह पाक कहाँ है। तो एक बात याद रखें, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। अल्लाह पाक से मांगने के बाद मुश्किल या नामुमकिन का गुमान नहीं रखते, सिर्फ यकीन से ताल्लुक मजबूत करते हैं। वो इंसान कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक से हो। जो इतने सालों से एक ही दुआ पर अटके हुए हो, अभी तक दुआ के पूरा होने पर मुंतजिर हो। यह जो सब्र किए बैठे हो, तुम्हारा रब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है, तुम्हें वो देने वाला है जिसकी चाहत ने तुम्हें रब से जोड़ दिया। नसीब में कुछ खुशियां ऐसी लिखी होती हैं जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती हैं। लोगों के तलक रवैयों से मत घबराओ, बस दुआ करो और फिर सब ठीक होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। हो सकता है अल्लाह पाक ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके तुम्हें अपनी तरफ आने का मौका दिया हो। यकीनन अल्लाह पाक मखली दिलों को नवाजता है। वक्त लगता है मगर अता कमाल करता है। अगर अल्लाह पाक आपसे इंतजार करवा रहा है तो उससे ज्यादा हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। जितना आपने मांगा था, कभी कभार अल्लाह पाक आपका दिल तोड़ देता है, सजा के तौर पर नहीं बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए। क्योंकि बाज औकात हम बुरी चीजों से मोहब्बत करने लगते हैं और वो चीजें हमें आगे मुसलसल तकलीफ देने वाली होती हैं। असल में यह वो चीजें या वो इंसान होते हैं जिन पर हम अल्लाह पाक से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और हमें खबर भी नहीं होती वो हमें बेशक कर देगी। वो हमसे हमारा सुकून छीन लेगी और हम जिस भी चीज या इंसान पर अल्लाह पाक से ज्यादा भरोसा करेंगे, किसी भी चीज या फिर इंसान से मोहब्बत
ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی، اس لیے اللہ پاک ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہیں لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ پاک کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ پاک کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ پاک کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہمارے انہیں خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ پاک کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خوف سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف اور خیال تمہیں لرز کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چن لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب تمہیں چن لیا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق راستہ تمہیں براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ دیا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا ملے گا، کون سا قبول ہوگا۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو مگر اس سے نہیں مانگ رہے جو تمہاری سحرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت، وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافرمانیاں بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشا کر دے، کیونکہ وہ تو خالق اور مالک ہے۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل دماغ جسم اور روح مال دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ضرورت تو تمہیں اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش کو انہی کے لیے چنا جاتا ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ پاک تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے، یا اللہ پاک تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے، بس کچھ دکھ بہت گہرے ہیں ورنہ تیری مسلین نہیں مجھے۔ تو تو قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ پاک، تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں۔ اتنا نہ آزما مجھے جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا، مجھے تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ مجھے منتظر ہے یہ دل تیری مدد کی قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ اور میرا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مانگو اور یقین سے مانگو، کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے۔ ذرا وقت لگ رہا ہے دعا قبول ہونے میں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ پاک نے دعا قبول ہی نہیں کرنی۔ پتہ ہے جب یہ سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول کیسے ہوں گی تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے بہت پہلے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ ایک غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے، اس امتحان کے بعد بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ بس تمہیں امید نہ ہارنا کہ امید کی ڈور سے بندے رہنے والوں کو اللہ پاک مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک تو ویسی کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تہجد میں تو وہ تمہارے روبرو ہوتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ کوئی اپنے اللہ پاک کے روبرو روتے ہوئے کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اسے رد کر دے؟ اللہ پاک کی تو احسان ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر جائے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ وہ تمہیں
तुम्हारी दुआओं के बदले बहुत देगा। जो चीज तुम्हारे लिए आजमाइश बनी हुई है, अल्लाह पाक तो वो आजमाइश भी खुशी में बदल सकता है। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआओं का सिला अब तक अल्लाह पाक ने नहीं दिया, दरअसल वो दुआएं अल्लाह पाक तुम्हारी चाहतों के मुताबिक करना चाहता है। जब भी तो देर कर रहा है, अल्लाह पाक चाहता है कि तुम उससे मांगते जाओ और वो तुम्हारी हर दुआ का जवाब देगा। अल्लाह पाक उसी को नवाजता है जो अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी दुआ कबूल होने का इंतजार करते हैं। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारे खौफ से आजमाता है। वो हर उस चीज से आजमाइश करता है जिसे तुम खोने से डरते हो। तुम्हारा यकीन का इम्तिहान हमेशा तुम्हारे डर से शुरू होता है। यकीन की सारी राहें बंद करके अल्लाह पाक देखता है कि क्या तुम इतना यकीन रखते हो, और फिर जब तुम बंद रास्तों के बावजूद भी मांगना नहीं छोड़ते और सब्र से अल्लाह पाक के मौजज़ों का इंतजार करते हो, तो अल्लाह पाक भी तुम्हें अता करने के लिए फिर वही दरवाजे खोल देता है जिनका तुम्हें गुमान भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह पाक तुम्हारा सिला भेजता है उससे बेहतर शक्ल में जिसे तुमने खो दिया था। तो बस फिर दुआ करते रहो। तुम्हारी कौन सी दुआ उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए अल्लाह पाक ने चुन रखी हो, तुम यह कभी भी नहीं जान सकते। और जो जल्दबाजी नहीं करते, अल्लाह पाक ने उनसे वादा कर रखा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तुम उसके आजमाइश पर पूरा उतरोगे, वो तुम्हारे वादों पर पूरा उतरेगा। फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद वो बाहिर नमाज है जो अल्लाह पाक से कुन कहलवाने की ताकत रखती है, और शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह पाक की रजा और रब की ख्वाहिश एक हो जाए। कभी कभी हम कुछ चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो फौरी शिकवे करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों वो वक्त भूल जाते हैं जब अल्लाह पाक ने हमारी ख्वाहिश जुबान पर आने से पहले हमें नवाज दिया था। जब उसने कई बार हमें बिन मांगे अता कर दिया था, तो जो बिन मांगने पर अता कर देता है, क्या वो मांगने पर कैसे रद्द कर सकता है जब तुम जानते हो उसके अलावा कोई देने पर कादिर नहीं। वो देर से ही सही नवाजता जरूर है, तो फिर डर और शिकवे कैसे। और फिर जब तुमने उससे दुआ की है तो यकीन रखो कभी न कभी तुम्हारी दुआएं मौजज़ों की शक्ल में जरूर पूरी होंगी। अल्लाह पाक पर पुख्ता यकीन मुश्किल से मुश्किल सफर मरहले में आराम से तय करवा देता है। तुम झूमते फिरोगे जब तुम्हारी बरसों पुरानी दुआएं भी रंग ले आएंगी। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा होता है। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन इंसान की सोच है। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रूह का रूह से ताल्लुक बहुत खास होता है। रब से बंदा जब पास होता है, आरजू और हाल दिल फिर रो रो के सुनाता है। कोई पर्दा फिर हालात के दरमियान नहीं रहता। एक गम का मारा जब उस रब से गुफ्तगू करता है, आजमाइश फिर पहले से आजमाइश नहीं रहती। मुसीबतें भी फिर सारी टल जाती हैं, तुम्हारे भी खुल जाएंगे दर नसीब के। एक दिन वो तो बस एक बेहतरीन वक्त के इंतजार में है कि कब वो तुम्हारे हक में बेहतरीन वक्त आए और वो तुम्हारी मनपसंद चीज मौजूदों के जरिए तुम तक ले आए। यह दुनिया कब किससे राज आती है, यह दुनिया कब किसे रास आती है। मिले गम तभी रब की याद आती है, वरना उससे पहले कब कैसे सजदे आते हैं। कब किसे नमाज आती है, किसी अपने को खोकर ही तो सच्चाई समझ आती है। फिर हर आजमाइश भी मसलियत खुदा नजर आती है। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मौजज़े भी इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। जहां अब बस रब को पाले वो रास्ता असली मंजिल जैसा है। तहज्जुद की दुआओं पर शक करता है, यार तू बंदा कैसा है, यार तू बंदा कैसा है। सुबह के 4 बज रहे थे, वो तहज्जुद पढ़ चुकी थी और वो अपने रब से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मैं तन्हा हूँ, मेरी मदद कर। मेरे रब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गहरे काले समंदर में फंस चुकी हूँ। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा है, मुझे सिर्फ उस समंदर की तेज लहरें सुनाई दे रही हैं। या अल्लाह पाक, मैं डर रही हूँ, मुझे खौफ है यह लहरें मुझे डुबो देंगी। मगर मेरा यह डर मेरे तुझ पर यकीन से बड़ा नहीं है। मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तू मुझे समंदर से निकालेगा। या रब, तू ही तो बस मेरा सहारा है। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। वो रोती ही सजदे में गिर गई और उसकी सिसकियां बता रही थी कि उसकी दुआ अर्श तक पहुंच गई है। एक दर्द भरी रात अल्लाह पाक के रूबरू बैठकर गुजर जाए तो जिंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से
जोर देता है और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीखियों में सिमट जाता है। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूं अपने करीब कर लेता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में सिमटता है। बाकाल हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मसलियत पोशीदा है। तुम जब खुद उसके तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुलाया जाता है ताकि तुम उस अफजल पहर में उठकर अल्लापाक को मना सको जिसमें मांगी गई दुआएं कभी भी रद्द नहीं हो सकती। यह तड़प इसलिए पैदा की गई है ताकि अल्लापाक तुम्हें अपने बेहद करीब कर सके। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो तुम्हें बिला वजह ही तड़प और मोहब्बत जगाए हुए है? नहीं, यह तड़प अल्लापाक ने पैदा की है। हर चीज नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे वो गम हो या खुशी। हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लापाक की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो उसकी जानिब बुलाया जाता है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। सब कुछ तुम उसे उम्मीद लगाए रखो, वो उस उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा। तहज्जुद के सजदों में बहाया गया एक आंसू सारी जिंदगी बदल देता है। सच्चे दिल से मांगी गई बस एक दुआ नसीब पलट देती है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है, ना कोई गम रुलाता है। तहज्जुद के नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है, और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तहज्जुद की तौफीक जब तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी हर बिगड़ी जल्द बन जाएगी। तहज्जुद वक्त अल्लाह से दोस्ती लगाने का, तहज्जुद वक्त है अल्लाह से बातें करने का। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या न मिले अल्लाह मिल जाता है। तहज्जुद मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए ताकि वो उसकी मांगी हुई मुरादों पर आमीन कह सके। वक्त और हालात हमें उन रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वो रास्ते हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। वक्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह पाक आसमान पर तारीख के रंग हमेशा नहीं रखता और उस आसमान को दिन के रंग बिरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आया है तो समझ लीजिए कि अब सिले का वक्त है, जिनका मुकम्मल होना आपकी नजर में नामुमकिन है। जो मोहब्बतों का बादशाह है वो कैसे आपकी मोहब्बत को मुकम्मल रहने देगा? वो सुन लेगा और इता में सब अता करके इस मायूस दिल को शर्मसार कर देगा। तहज्जुद का सजदा अपने आप में ही बहुत ताकत रखता है और वक्त तहज्जुद मांगी जाने वाली दुआओं की शिद्दत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नसीब भी नहीं। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिद मुगवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।